السلام علیکم سعید خان صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سعید صاحب؟ خیریت ہے علی بھائی، آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور میں آپ کو اپنے پروگرام مکالمے میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اتنی دور محمد ایجنسی سے چل کر کے پشاور آئے اس پروگرام کے لیے. جزاک اللہ خیر. تو سعید خان صاحب، ہمارا یہ جو پروگرام ہے اس کا فارمیٹ ایسا ہے کہ اس میں ہم جاننا چاہتے ہیں آپ کی زندگی کی جو کہانی ہے کہ سعید خان ہے کون، اور اس کے والدین نے اس کو کیا نصیحت کی جس کو انہوں نے اپنے پلو سے باندھا اور زندگی گزاری. تو محمد سعید نام ہے، غازی بیگ گاؤں ہے محمد ایجنسی میں، فاٹا سے تعلق ہے محمد ایجنسی. اور محمد ایجنسی ایک دور دراز اور پسماندہ علاقہ ہے. والدین کی بات آپ نے کی تو والد صاحب کا سایہ تو اللہ نے نصیب فرمایا، لیکن والدہ بچپن میں ہی بہت ہو چکی تھی. اور والد صاحب ایک نصیحت جو ہر وقت مجھے کرتے تھے وہ یہ تھی کہ یہ جو آپ جس جماعت میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، جماعت اسلامی میں، تو یہ ایک صداقت والی اور حق والی، امانت اور دیانت والی جماعت ہے. تو اس میں جان فشانی سے کام کرو، اور کوئی بھی ایسی بات ہو جو خطرے والی ہو، نقصان والی ہو، تو اس میں مداہنت سے کام نہ لینا. تو وہ نصیحت مجھے ابھی تک ان کی یاد بھی ہے، اور اس پر اکثر مواقع پر وہ عمل بھی کی کوشش کرتا ہوں. جب ایسا موقع آتا ہے اور کچھ پریشانیاں ہو جاتی ہیں تو والد صاحب کی وہ بات یاد آ جاتی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو سعید صاحب، اپنی زندگی کا سفر بھی تھوڑا بتائیں ہمارے ویورز کو کہ آپ زندگی کے کن مراحل کو گزرتے ہوئے آج اس پروگرام تک پہنچ گئے. میں تو جماعت اسلامی میں جب اسلامی جمعیت طلبہ میں تو نہیں رہا ہوں، ویسے بچپن سے جماعت اسلامی سے. اس وقت کی بات ہے جب فاٹا میں وہ سیاسی آزادی نہیں تھی، اور صرف قاضی حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ اکثر فاٹا میں جاتے رہتے تھے. تو ایک دفعہ وہ محمد ایجنسی میں تشریف لائے، اور محمد ایجنسی میں جو ہمارا بڑا تجارتی مرکز ہے، میاں منڈی بازار ہے، میاں منڈی اس کا نام ہے، وہاں پر وہ جلسہ ان کا ہو رہا تھا. تو میں اس جلسے میں شریک ہوا، اور قاضی صاحب کی ملاقات بھی ہو گئی. ان کی باتوں سے بہت متاثر بھی ہوا، اور اس کے بعد مسلسل جماعت اسلامی سے رابطہ رہا. اور اس سلسلے میں مکرم خان عاطف صاحب بعد میں شہید ہو گئے، تو وہ میرے مربی بھی تھی، اور ان کی وہ بہت کوشش تھی تحریک کی طرف آنے. پھر یہ بات تھی کہ ہمارا علاقہ جو ہے نا فاٹا، پھر فاٹا میں محمد ایجنسی بہت پسماندہ ترین علاقہ ہے، تو بہت سے مسائل بھی تھی، بہت سے مشکلات بھی تھی، اور ان مسائل اور مشکلات کی حل کی وہ طلب بھی ہو رہی تھی کہ کچھ کردار تو اس میں ہو، میری طرف سے بھی ادا ہو. تو اس سلسلے میں جب اس وقت اور اب بھی ہے الحمدللہ کہ جماعت اسلامی میں رہ کر، جماعت اسلامی کے ساتھ آ کر ان میں وہ کچھ کردار ادا ہو سکتا تھا. پھر اس سلسلے میں یہ ہے کہ جماعت میں آنے کے بعد پھر جماعت نے ایسی تربیت کی کہ وہ الحمدللہ اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اور کبھی کبھی یہ بھی سوچتا ہوں کہ اگر ان حالات میں میرا وہ جماعت سے رابطہ نہ ہوتا تو پھر ہم کیا کرتے، کیا بنتے. تو ایک اللہ کا شکر زبان پر آتا ہے، بے ساختہ کہ شکر ہے کہ اس زمانے میں ہم اس تحریک کے ساتھ بھی وابستہ ہے، اور آپ جیسے لوگوں سے اس میں رابطہ بھی ہوا.
ताल्लुकात भी उसवार हुए, तो मुसलसल यही रब्ता रहता है, तरबियत रहता है, और काम भी अपने हद तक कुछ थोड़ा सा अल्लाह कबूल फरमाए वो भी करते रहते हैं। दुरुस्त। अपना सईद खान साहब, आपने सन 2013 में मोहम्मद एजेंसी से बहैसियत जमात इस्लामी के कैंडिडेट मुकाबला किया MNA की सीट के लिए। आप ये बताना चाहेंगे कि ये आपने इलेक्शन कैंपेन लड़ी कैसे? आपके पास माली वसाइल कहाँ से आए और आपकी खुद जरिया आमदनी है क्या? मैं ये कहूँगा कि वो जो हम कहते हैं मिडिल क्लास, तो मिडिल क्लास से भी मैं ताल्लुक़ नहीं रखता, उससे भी मतलब वो जो गरीब तबका है उससे ताल्लुक़ है। फिर ये है कि आपको मालूम है, आप शायद फाटा में गए भी हैं, ये जो ऑपरेशन हुआ था, जो हालात ख़राब हो गए और सारे पाकिस्तान में और फिर फाटा में और मोहम्मद एजेंसी में ऑपरेशन हुआ, पहले से भी हालात ख़राब थे, लेकिन 2010 की नवंबर 2010 से एक बहुत बड़ा ऑपरेशन मोहम्मद एजेंसी में शुरू हुआ, जिससे हज़ारों ख़ानदान मोहम्मद एजेंसी की वो नकल मकानी कर गए, और उनमें से बहुत से लोग ये थे कि जो सेटल इलाके में आए, पेशावर और नौशेरा के अजला में, यहाँ पर वो उनने जो कैंप बने थे IDPs के लिए, उसमें रिहाइश इख्तियार की। और फिर 2011 में जो ऑपरेशन हुआ तो उसमें मोहम्मद एजेंसी के अंदर उनके लिए कैंप कायम किए गए। वो हालात ऐसे थे कि उस वक़्त ये इलेक्शन और ये वोट, और मैं कैंडिडेट भी नहीं था जमात की तरफ से उस वक़्त, और ना कोई ऐसी फ़ज़ा थी। 2002 में जो MMA बनी थी, तो MMA की कैंडिडेट के लिए हमने दौड़ धूप किए थे। 2008 में जमात ने बाइकाट किया था, और 2008 से 2013 तक मुसलसल ये हालात ख़राब रहे थे, तो हमारी सारी तवज्जो वो मुतासिरीन की खिदमत की तरफ थी, और उन्हीं कैंपों में हम रहे। अल्हम्दुलिल्लाह ये तो एक तो जमात इस्लामी की वो तरबियत थी, और ये खिदमत को अपने लिए इबादत समझते हैं। और फिर अल खिदमत फाउंडेशन दूसरी जो है उन इदारों की ताउन से हमने मुतासिरीन की खिदमत की, और दूसरी भी हम जितना हो सकता था। मुझे भी याद है वो नाकी के मुकाम पर जहाँ पर हमारा वो मदरसा भी है, तो वहाँ पर एक IDPs कैंप वहाँ बनी थी। उस कैंप के लिए हम गांव में वो गाड़ियाँ लेकर कारकुनान के साथ वहाँ पर लोगों से रोटियाँ जमा करते थे, और फिर वो मुतासिरीन की कैंप में लाते थे। तो वो जो मुतासिरीन की खिदमत थी, तो लोगों की फिर जब इलेक्शन का फिजा बन गया, लोग अपने घरों को वापस चले गए और दूसरी कैंडिडेट वहाँ आने शुरू हो गई, तो वही लोग जो ऑपरेशन में जिनने जमात की वो इखलास देखी थी, जमात की कारकुनान की खिदमत देखी थी, और मेरी तो जिम्मेदारी थी अमीर ज़िला की, तो ज़ाहिर है वो मेरा उनसे रब्ता रहता था। तो वो लोग खुद कहा करते थे कि इलेक्शन लड़ना है हमने, और आप जो है ना ये आप हमारी कैंडिडेट होंगी। मैंने कहा कि हमारा तो जमात जिस तरह हुक्म देता है तो हम उसको मानते हैं, और फिर जमात का भी फैसला किया, उनने मेरे लिए ये हुक्म था कि आप इलेक्शन लड़ेंगे बेसर सामानी के हालत में। तो इलेक्शन के वहाँ पर जितनी हो रहे थे अखराजात, दूसरे मेरे मुकाबले में जो कैंडिडेट खड़े थे बहुत बड़े बड़े सरमायादार थे, और वो बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले, वो जब जलसा करते थे तो एक इलाके में जाते थे तो वहाँ पर जमा होने वाले लोगों के लिए रोटी का बंदोबस्त करते थे, और एक एक जलसे पर उनके लाखों के अखराजात आते थे। जब हम कहाँ जाते थे तो वही लोग, गांव के लोग जो हमारे लिए चाय रोटी का भी बंदोबस्त करते थे, और हम हुजरे में, मस्जिद में, हर जगह पर, बाज़ारों में वहाँ पर अपनी बात वहाँ रखते थे, और अपनी जो जमात की जो किरदार है और हमारी जो क़ियादत है और जो हमारी जो अमानत और दियानत है और जो हमारी जो खिदमत है वो उनके सामने रखते थे। तो वो लोगों को बड़े पैमाने पर उन्होंने हमारे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया इलेक्शन में। आपको ये भी याद दिला दूँ कि 2013 का इलेक्शन
मोमन एजेंसी में जमात इस्लामी का पहला इलेक्शन था। हमने वहाँ पर कभी कागजात भी जमा नहीं कराए थे कि हमने इलेक्शन लड़ना है, तो पहला इलेक्शन था वो, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जमात की अच्छी पोजीशन बनी। और फिर वही लोग, अब भी ऐसा फिजा है कि वो उसी तरह हमारे साथ है, बल्कि उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है, और वो अपना वो मुतालबा है उनका कि हमने इलेक्शन लड़ना है। फिर सईद खान साहब, आपकी बात से जो मैं समझ पाया कि मोहम्मद के लोगों की आपने बहुत बेलौस खिदमत की जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से, और इस खिदमत की वजह से लोग मुतासर हुए और उन्होंने आपको और जमात इस्लामी को पुश किया कि वो मोहम्मद में इलेक्शन लड़ें। और आपको जहाँ एक आपका मुखालिफ कैंडिडेट लाखों और करोड़ों रुपए लगाता है, आपको वो पैसे नहीं लगाने पड़ते, क्योंकि लोग आपका इस्तकबाल करते हैं और लोग आपको कबूल करते हैं और आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। यही बात कहना चाह रहे थे आप? ये ना 107 पोलिंग स्टेशन थे। हर पोलिंग स्टेशन पर जितने कारकुनान और जो सपोर्टर जमा होते हैं कैंडिडेट के, उनके लिए लोग कैंडिडेट रोटी का बंदोबस्त करते हैं, चाय का, मशरूब का वगैरह। तो 107 पोलिंग स्टेशन पर कहीं भी हमारे लिए किसी पोलिंग स्टेशन पर वो बंदोबस्त नहीं करना पड़ा है। किसी भी पोलिंग स्टेशन पर हमारे लिए गाड़ी का जो गाड़ी, वो वही लोग, वो सपोर्टर, वो खुद गाड़ियाँ लाकर वो वोटर ला रहे थे पोलिंग स्टेशन पर, रोटी का बंदोबस्त खुद करते थे। मुझे भी दावत देते थे कि आप यहाँ आए, तो बहुत सहूलत थी इस सिलसिले में। और बहुत इसमें जो ये है कि अली भाई की ऐसा फजा हो तो फिर आदमी की वो इखलास में इजाफा भी होता है, उस पर वो यकीन भी बढ़ता है, और एक मज़ा भी आता है कि लोग उनकी तरफ से इतनी मोहब्बत हो, इतना इखलास हो, और इतना वो मोहब्बत से पेश आए। तो बहुत आसानी रही थी इस सिलसिले में हमारी भी, जो अब भी है। अच्छा सईद है अल्हम्दुलिल्लाह। सईद खान साहब, हम दोबारा आते हैं आपके ज़िंदगी की कहानी की तरफ। तो आप ज़रा सा ये बताइएगा कि आपका अब ज़रिए आमदनी क्या है? आपने बताया कि आप एक बहुत ही गरीब मुतवस्सित तबके से आपका ताल्लुक़ था, और अब आपके ज़राए आमदनी क्या है, और आपके कितने बच्चे हैं, आपने क्या तालीम हासिल की है, ये भी काइंडली हमारे व्यूअर्स से शेयर करें। ये तो बुनियादी तौर पर हम ज़राअत पेशा लोग हैं, और उधर ही मोमन एजेंसी में ऐसा है कि हर गिराने का, हर आदमी का कुछ ना कुछ वो ज़मीन होता है जिसमें वो तो कश्तकारी करते हैं। तो अल्लाह की तरफ से वो हमें भी मिला है वो ज़मीन, तो बुनियादी तौर पर वो पेशा है। इसके अलावा बच्चे जो है ना, 4 बच्चे हैं। हाँ, तो एक तो जमीयत की भी रुकन रहे हैं, अब जमात के रुकन है, जमात में तो मुख्तलिफ काम करते हैं, कारकुन हैं। और एक बेटा जो सबसे छोटा है वो मदरसे में पढ़ता है 5वें दर्जे में, अल्हम्दुलिल्लाह। वो इंशाल्लाह आलिम बनकर आएगा वहाँ से। एक बेटा सऊदी अरब में मेहनत मजदूरी करते हैं, और जो बड़ा बेटा है वो घर पर है मेरे साथ, अक्सर वो मेरा मावन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक गुजारा चलता है, और हम अल्लाह के शुक्र अदा करते हैं इस पर। जज़ाकल्लाह खैरा, अहसन अल जज़ा, जज़ाकल्लाह।